اس سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہماری آیت نمبر 80 اور ہم نے آیت نمبر 79 دونوں میں ہی یہ دیکھا کہ یہود علماء جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب تورات میں تحریف کرتے تھے، آیات کو بدل لیتے تھے، خاص طور پہ ان آیات کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا ذکر تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی طور پر اپنے ہی گمان بنا لیے تھے، اپنی ہی آرزویں بنا لی تھیں، اور ایک عقیدہ بنا لیا تھا کہ چند دن کے علاوہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی اور ہم ہی جنت کے حقیقی وارث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو یہ تمام آیات اور یہ تمام واقعات بیان کر کے ان کا یہ گمان ختم کر دیا، اور آیات نے صاف صاف کہہ دیا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا تھا کہ اللہ تمہارے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یعنی جیسا تم چاہتے ہو، جیسا تم سوچ رکھتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تمہارے گمان اور آرزویں ہوتی ہیں۔ عموماً ایسا ہے کہ جب کوئی انسان غلطی پر ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غلط ثابت نہیں کرتا، اپنی غلطی کو نہیں مانتا، تو وہ لازمی طور پہ اپنے ذہن میں ایک گمان بنا لیتا ہے کہ میں چونکہ ٹھیک ہوں لہٰذا میرے اس کام کا مجھے اجر ملے گا۔ یہ اس کی اپنی آرزو ہوتی ہے دل کی، یہ اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے دل کی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور ہو، جنت کے وارث بنائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا کیوں نہیں، من جو، کسبا یا جس نے، کسبا کمائی کی یا کمایا، سیئتن کوئی برائی، وا اور احاطت گھیرے میں لے لیا، بھی اسے، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فا تو اولئک وہی لوگ، اصحاب صاحب ہیں یا والے ہیں، الناری آگ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جھوٹ گڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات سے انکار کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ بلا کیوں نہیں، یہاں پہ آپ اس کی میننگ سے دیکھیے، کیوں نہیں کا مطلب انکار بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوٹ کیجیے، بلا جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں حرف ایجاب، ایجاب، حمزہ یا جیم الف با، ایجاب، ٹھیک ہے؟ ایجاب، حرف ایجاب کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں نا، کلام مخاطب کی نفی کرتا ہے وہ، کیوں نہیں، جو بات کرنے والا ہے وہ کہے گا کیوں نہیں، یعنی کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر ہم اس کیوں نہیں کو سمجھیں تو یہ ایک طرح اس چیز کو جو کہ پہلے بات کہی گئی ہے اس کی نفی بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کلام مخاطب کی نفی کرتا ہے، اور اس کے ابطال یعنی جو اس نے ایک باطل جھوٹ بولا ہوا ہوتا ہے نا، یہ اس کے استعمال اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا نا، یہ اس کا استعمال اس کی وجہ سے یہ یہاں پہ حرف ایجاب آیا ہے، بلا کیوں نہیں، من جو یا جس نے، یہاں پہ من شرطیہ ہے، من شرطیہ ہے۔ آپ دیکھیں گے من شرطیہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ جہاں پر من شرطیہ آئے گا اس میں اس کی جواب شرط بھی موجود ہوگا یا پھر جزا بھی ہوگی اس کی۔ تو من شرطیہ، کسبا جس نے کمائی کی، شرط لگ گئی نا، جس نے کمائی کی، جس نے ایسا کیا ہوگا، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ من کسبا جس نے کمائی کی، فعل ہے، ماضی کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، کا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اگر ہم اس کو لغوی معنی دیکھیں تو کوئی بھی نفع حاصل کرنا،
किसी भी किस्म का फायदा उठाना इसका काम है। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी कसब कमाते हैं, वो हमारा फायदा होता है। कैसे? हम उससे अपना पेट भरते हैं, हमारा वो जरिया माश होता है, या कोई भी कसब जिससे हम कोई भी फायदा ही उठाते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना, हम जानबूझ के अपना कोई नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करते। हमेशा हमारा मतलूब जो होता है वो अपना कोई नफा हासिल करना होता है। खा हमारा पेट भरना हो, खा हमारे घर की सफाई, हमारे जहन की सुथराई हो, खा हमारा कोई किसी के लिए फायदेमंद काम हो। हमारी कसब, हमारे हाथ जो भी काम करते हैं वो अपने लिए नफा के लिए करते हैं। तो बेसिक नफा जो है वो काफ सीन बा नफा हासिल करने के लिए होता है, लेकिन कमाई भी होती है, क्योंकि हमारी कमाई ही हमारा नफा है। सय्यअतन कोई बुराई, ये इसम है, मंसूब होके आया है और नकरा है। गुनाहों में घिर जाना, यानी कि इतने ज्यादा गुनाह हो जाना कि आप गुनाहों में घिरे हुए हों, वो सय्यअतन बुराई किसी भी किस्म की। खास तौर पे आपकी जाती बुराई नहीं होगी, इसमें होगी गुनाहों वाली। आप देखते हैं कि आपकी शख्सियत की बुराई और चीज होती है, और आपके जो हाथों से आप अमल करते हैं, कोई कर्म करते हैं, कोई कसब करते हैं, वो और तरह की कमाई होती है। दो चीजें अलग अलग सी आ गई। तो सही आतन गुनाहों वाली बुराई होगी, कोई बुराई। फा अ, वा हरफ आतफ है, हाँ ये मुन्नस भी है। वा हरफ आतफ है। अहातत घेरे में ले लिया। आप देखिए कि सही आतन मोनस था, तो फेल भी मोनस का आया। इसकी वजह से ये ता साकिना जो है मोनस की इलामत है, फेल है माजी का, वाहिद है, मोनस है, गायब है। तो घेरे में ले लिया, हा वाव ता इसका रूट वर्ड। घेरे में ले लेना, चारों तरफ से इस तरह उसके ऊपर छा जाना कि वो उसके अंदर मुकैयद हो जाए, कैद हो जाए कोई चीज। भी उसे, उसको, भी साथ ही उसको। ठीक है, ये जार और ये मजरूर मुरक्कब जारी, और ये ही क्या है? ये वाहिद मुन्नस वाहिद मुजक्कर गायब के लिए आई है। उसे, किसे? कोई किसी इंसान को जिसने कोई कमाई की हो, जिसने कोई कसब किया हो। खतीअतुहु उसके गुनाह ने। ख्वा त्वा अलिफ वाला हमजा इसका रूट वर्ड है। और ये देख लीजिए, ये भी ताके ऊपर पेश जो है ना, आपने ये नहीं समझने कोई फेल है, ये इसम है। उसके गुनाह ने, तो ये इसम प्लस जमीर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। ठीक है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है ये। खतीअतुहु गुनाह हु उसका, उसका गुनाह। ठीक है, ये इसके लफ्जी मायने बनेंगे। फा तो यहां से शुरू होगी इस मन का जवाब, जिसने बुराई कमाई और उसके गुनाह ने उसे घेरे में ले लिया। यहां तक तो इसकी शर्त थी। तो वो लोग आग वाले हैं। यहां से इसकी जवाब शुरू हो रहा है कि जो लोग ऐसा काम करेंगे, फिर उसका जवाब क्या है, उनको मिलेगा क्या? तो इसको जवाब शर्त या जजा कहते हैं। ठीक है, फा जवाब शर्त, उलाइका वही लोग, ये है इसम इशारा बाईद के लिए। ठीक है, जमा के लिए, जमा में मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए ये इशारा इस्तेमाल होता है। तो वही लोग, अस्हाबु, अस्हाबु हम देखेंगे कि ये वो हर्फ है, ये वो इसम है जो हमेशा मुजाफ बनता है। अस्हाबु जहां कहीं पर भी आपको नजर आएगा, इसके बाद वाला इसम इसके साथ मिलके मुरक्कब इजाफी बना रहा होगा। अस्हाबुन नारी आग वाले हैं, या आग के साहिब हैं, आग के लोग हैं। इसम ये भी है, इसम ये भी है। ये साहिब की जमा है, साहिब अस्हाबु जमा मुकस्सर। अन्नारी ये मजरूर होके इसम जो आया है, ये मुजाफ अलैह होने की वजह से आया है, और अल हमें बता रहा है मारफा इसम था, और नार क्या होती है? हमेशा मुन्नस होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बात की गई है ना, ये मुन्नस के ही हैं। अस्हाबुन नारी आग वाले लोग हैं, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। हम वो सब, वो सब, वो तर्जुमे में आएगा तो गायब के लिए है।
ठीक है, जो मौजूद नहीं होते, वो सब, और सब हम कहेंगे तो जमा के लिए होगा। हम वो जमा मुजक्कर गायब की जमीर है ये। ठीक है, और ये मरफू जमीर है, क्यों? क्योंकि ये डी टैच है। आप देख रहे हैं ये जुड़कर नहीं आई हुई। जो जमायर जुड़कर आते हैं वो नस्बी जरी हालत के होते हैं, मरफू भी होते हैं, लेकिन वो अलग आपको कभी समझाऊंगी। ये जो इस शक्ल में आते हैं ना, ये हुम, अगर ये किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आ रहा है तो ये हालत नसब जर का जमीर है। लेकिन अगर ये अलहदा आ रहा है, बिल्कुल जैसा यहां आपको नजर आ रहा है, तो ये मरफू जमीर होगी। डीटैच प्रोनाउंस मरफू जमायर होते हैं, ये जुड़कर नहीं आते, अलहदा से आते हैं। ठीक है, और यहां पर ये होम जो है, ये जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। कि वो सब, फीहा मुरक्कब जारी है, इसमें जार प्लस मजरूर मुरक्कब जारी। खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं। खालिदूना खालिद की जमा है, और कौन सी है? जमा सालिम है, क्योंकि ऊना जो है वो जमा सालिम के लिए आती है। और ये इसम है, मरफू है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। ठीक है, ख्वा लाम दाल इसका रूट वर्ड है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जिसने कोई बुराई कमाई, जो भी कोई गुनाह लेके अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, उसे उसका गुनाह घेरे में ले लेगा चारों तरफ से। अगर हम अल्लाह ताला की जमीन को देखें तो जमीन में गुनाह करने के बाद हम कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह की जमीन के किनारों से बाहर निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते। अगर कहीं भी किसी भी जगह में हम चले जाएं गुनाह करने के बाद, वो गुनाह हमें हर तरफ से घेरे में ले लेगा। ये अल्लाह ताला की पावर है, अल्लाह ताला की कुव्वत है, जिससे एक गैर मुस्लिम जो है वो इनकारी होता है। कुफार इससे इनकारी थे, बनी इसराइल इससे इनकारी थे। कुरैश मक्का अल्लाह की इस पावर से इनकारी थे, अल्लाह को मानते भी थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की सिफात को नहीं मानते थे उस तरीके से। शिर्क तो मौजूद था, मुशरिक तो वो हो चुके थे। दीन इब्राहिमी के ऊपर होने के बावजूद वो मुशरिक हो गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक बना लिए। अल्लाह ताला की वहदानियत में किसी ना किसी को उनके साथ लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो रब्त कलाम हम देखते हैं ना, पिछली आयत से जोड़ जो हम देखते हैं, वो है मन घड़त तस्वुरात का और बदआमालियों का, कि किस तरीके से एक इंसान की बदआमाली उसको जहन्नुम में ले जाएगी। जबकि जन्नत के वारिस कौन लोग होंगे? साहिबे ईमान, साले अमाल करने वाले। तो यहाँ पे जो अहले किताब थे, और फिर अहले किताब के बाद हर फर्द को ही ये एक जहन नशीन कराई जा रही है, या बात बावर कराई जा रही है कि बुलंद बान दावे करना, दिलकश नारे लगाना, हसब नसब का कोई भी आपका इम्तियाज, बुजुर्गों की कोई भी निस्बत उस शख्स को कोई फायदा नहीं देगी जो ईमान से आरी होगा और मरते दम तक शिर्क और बिदत में मुलविस रहा होगा। हर वो इंसान जो शिर्क में मुलविस हो गया, जहन्नुम उसका ठिकाना है, और अबदी ठिकाना है, और ऐसा ठिकाना कि जिसके बाद सारी जिंदगी के लिए वो उसी में रहेगा, अबद तक उसका ठिकाना हो गया। क्योंकि जो हमारी अबदी जिंदगी है उसमें मौत नहीं है। ये कितना बड़ा खसारा है कि यहाँ पे जो थोड़े दिन का अमल किया हुआ हमारी अबदी जिंदगी में हमेशगी के लिए या तो हमें जन्नत दिला सकता है, या हमें दोजख में फेंक देगा। अगर उनका ईमान नेमत और किरदार की दौलत से माला माल होगा, तभी वो जन्नत में जाएंगे। ड्रॉप हो गए थे सिग्नल्स। क्या आपकी